میری حسرت تمام تر ہما قریشی پارٹ 2۔ شام کا وقت تھا، گھر کے تمام افراد لان میں بیٹھے چائے کی چسکیاں بھر رہے تھے، جبھی موبائل میں گم زویا کی غیر ارادی سی نظر سامنے گئی تھی اور وہ خوشی سے چلانے ہی والی تھی کہ مقابل کے خاموش رہنے کے اشارے پر منہ بند کر گئی۔ سرپرائز! پیچھے سے ابھرتی شناسا آواز پر سبھی چونک اٹھے تھے۔ حیدر، میرا بچہ! سب سے پہلے سائمہ دورانی اس کی جانب لپکی۔ زویا بھی چلا کر اس کی سمت بھاگی، جو جینز شرٹ کے ساتھ لیدر کی بلیک جیکٹ ہاتھ پر ڈالے، سیدھے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہلکی بھوری داڑھی والے جاذب نظر آتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے انہیں حیران کر گیا تھا۔ حیدر دورانی نے مسکرا کر قدم آگے بڑھائے تھے۔ السلام علیکم ماما بابا۔ حیدر قدم آگے بڑھا کر اپنے باپ کے بغل گیر ہوتا ماں کی جانب بڑھا۔ ویلکم بیک ٹو ہوم۔ محمود دورانی نے کندھا تھپتھپا کر خوشی کا اظہار کیا۔ تھینکس بابا۔ حیدر ان کے انداز پر مسکرایا۔ سفر کیسا رہا بیٹا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میرے بچے کو؟ سائمہ بیگم نے حیدر کا ستا ہوا سا چہرہ دیکھ استفسار کیا۔ بالکل بھی نہیں ماما، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، سفر بہت اچھا رہا۔ حیدر نے زویا کی چڑ چلتی زبان کو دیکھ انہیں مطمئن کیا۔ بیٹا، آنے سے پہلے انفارم ہی کر دیتے، میں اور آپ کے بابا تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ کی فلائٹ اگلے ہفتے کی ہے۔ سائمہ بیگم نے بیٹے کی آمد پر جس طرح کے استقبال کا سوچ رکھا تھا، وہ سارے پلانس تو دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اگر اپنی آمد کا پہلے ہی آگاہ کر دیتا تو پھر آپ کے چہرے کی یہ چمک خوشی کیسے دیکھتا؟ حیدر نے انہیں بازوؤں کے گھیرے میں لے کر مسکرا کر کہا، جس پر ان کے چہرے پر ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ چلیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، بیٹا تم فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ محمود دورانی نے تینوں ماں بیٹے کو مگن ہوتا دیکھ حیدر کی تھکن کے پیش نظر سائمہ بیگم کی بھی توجہ اس جانب کروائی تھی۔ حیدر جاؤ بیٹا، شاباش۔ وہ خیال آنے پر فوراً بولی، اوکے موم، میں فریش ہو کر تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ حیدر مسکرا کر اپنا بیگ کندھے پر ڈالتا سیڑھیاں عبور کر گیا تھا۔ حیدر نے اپنے روم میں قدم رکھا تو ایک مسکراہٹ سی تھی جو لبوں پر پھیل گئی۔ کمرے کی ہر چیز ترتیب سے یوں ہی اپنی جگہ پر موجود تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ بس سائڈ وال پر ذرا تبدیلی سی محسوس ہوئی تھی، جہاں اس کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی ہر خاص موقع کی یادگار تصویر فریم کرا کر لگائی گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ لگتا ہے ماما نے کچھ زیادہ ہی اسپیشل سوچ رکھا تھا۔ وہ سب چیزوں پر نظر ڈالتا مسکرایا اور بے ساختہ ہی قدم اٹھاتا بیک سائڈ کی ونڈو کی جانب بڑھا تھا، جہاں سے حالے کے گھر کا لان واضح نظر آتا تھا۔ لگتا ہے آج میڈم کی رات کچھ زیادہ ہی جلدی ہو گئی ہے۔ اس کی مخصوص نشست کے پاس سناٹا سا دیکھ وہ خود ساختہ بڑبڑایا، جہاں انگنت رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں سی بنی ہوئی تھی۔ فائنلی حالے انصاری پر لمحات آن پہنچے ہیں جن کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ وہ بیٹھ پر پیر لٹکا کر لیٹتا، وہ آنکھیں بھون گیا تھا۔ وہ سالوں پہلے یہاں سے رخصت ہوتے وقت جتنا اداس تھا، آج اس سے کئی زیادہ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ لمحوں کے لیے کھو سا گیا تھا۔ اوف حیدر دورانی، ابھی بہت وقت ہے، فی الحال تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خود کو سرزنش کی گئی۔ چلو جی، اب پہلے شاور لے لیتے ہیں، پھر آرام، اور پھر آپ کو سرپرائز بھی تو کرنا ہے میڈم۔ خود ساختہ بڑبڑاتا وہ کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ حالہ حالہ، کہاں ہو تم؟ زویا عادت کے عین مطابق چیختی پکارتی انصاری ہاؤس میں انٹر ہوئی تھی۔ اللہ اللہ لڑکی، دل دہلا دیا میرا۔ سب خیر تو ہے؟ فائزہ بیگم ہال کر رہ گئی۔ جی جی سب خیر ہے آنٹی۔ حالے کہاں ہے؟ اتنی چیخ پکار کے باوجود اس کی غیر موجودگی پر ایسے حیرت ہوئی تھی۔ بیٹا وہ تو اپنے بابا کے ساتھ ذرا کسی کام سے گئی ہے، بس ابھی آ جائے گی۔ سب خیریت ہے نا؟ انہیں اب تفتیش ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، دراصل ابھی کچھ دیر پہلے ہی حیدر بھائی واپس آئے ہیں تو مجھے حالے کو سرپرائز دینا تھا۔ اوہ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ وہ آتی ہیں تو میں بھیجتی ہوں حالے کو، بلکہ حیدر سے تو مجھے بھی ملاقات کرنی ہے۔ وہ بھی خوشی اور حیرانی سے بولی، ضرور، مگر آنٹی ابھی آپ نہیں بتائیے گا، اب صبح ہی بتائیں گے، ابھی حیدر بھائی ویسے بھی ریسٹ کر رہے ہیں۔ زویا کو اب اسے تنگ کرنا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ، میں چلتی ہوں۔ آپ حالے کو نہ بتائیے گا ابھی پلیز۔ نہیں بتا رہی بھائی۔ اف، یہ لڑکیاں بھی نا۔ وہ ہولے سے مسکراتی ہی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ گڈ مارننگ سر، ویلکم بیک ٹو دی آفس۔ شرجیل فراز احمد کو اس عالیشان بلڈنگ کے لفٹ سے باہر آتا دیکھ ایک خوبصورت سی پین کوٹ میں ملبوس سیکرٹری نے وش کیا تھا۔ شرجیل نے سر کو خم دے کر اس کا وش قبول کیا، جو اب اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتی آفس روم کی جانب جا رہی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں کا اسٹاف فوری کھڑے ہو کر اسے صبح کا سلام پیش کر رہے تھے۔
सफ़ेद टी-शर्ट, ब्लू पैंट कोट पर आसमानी रंग की टाई में मलबूस शर्जील संजीदा तासुरात के साथ अपने मजबूत भारी कदम उठाता ग्लास डोर खोलकर अपने ऑफिस रूम में दाखिल हो चुका था। यस मिस एला, अब बताएं अब तक की क्या रिपोर्ट है और आज हमारी मीटिंग्स का क्या स्केड्यूल है? शर्जील ने सबसे पहले अपना कोट उतार कर स्टैंड पर हैंग करते रिलैक्स होकर अपनी चेयर संभाली थी। फिर भरपूर तवज्जो के साथ दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाकर एला से सवालिया अंदाज में पूछा, सर आपकी गैर मौजूदगी में साइन होने वाली तमाम डील्स की डिटेल इस फाइल में मौजूद है। जबकि फराज साहब ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप इन तमाम साइट्स का विजिट लाजमी कीजिएगा। आज आपकी फ़िलहाल कोई मीटिंग नहीं, आज की तमाम मीटिंग्स फराज साहब खुद ही अटेंड करेंगे। जबकि फराज साहब का ऑर्डर है कि आज आप सिर्फ दुरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की साइट का लाजमी विजिट कीजिएगा। वहाँ जल्द ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। मिस एला ने जल्दी-जल्दी टच पैड पर उँगलियाँ चलाते आज के मुकम्मल शेड्यूल से आगाही दी थी, जिसे शर्जील बगौर सुन रहा था। ओके मिस एला, आप आज होने वाली तमाम मीटिंग के शेड्यूल और तमाम डिटेल्स की फाइल लाजमी दीजिए मुझे। शर्जील ने इसकी सारी बातें सुनकर हुक्म सादिर किया। लेकिन सर, फराज साहब ने आपको आज मीटिंग एला ने कुछ कहना चाहा। मिस एला, जितना कहा जाए बस इतना कीजिएगा। जल्दी आ जाएँ। अगले 15 मिनट में मुझे अब तक के और एंड्स प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स अपनी टेबल पर चाहिए। शर्जील ने एला को मुँह खोलता देख टोका, तो वो भी ओके सर कहती ऑफिस का डोर धकेल कर बाहर निकल गई। हेलो, फैज़ान मेरे ऑफिस में आओ फ़ौरन। एक्सटेंशन उठाकर एक नया हुक्म सादिर करता वो पीछे कुर्सी की पुश से सर टिका कर बैठ गया था। सर मैं आई कम इन? यस सर। वो मैं मुअद्दबाना अंदाज में एन सामने था। अब तक कंपनीज़ में मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ है वो ज़रा तफ़सील से बताओ मुझे। वो संजीदा दिखाई दे रहा था। सर कुछ ख़ास नहीं, जो ख़ास है वो भी और जो ख़ास नहीं है वो भी। सब कुछ का मतलब वो तमाम बातें जो यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में तय पाई हैं। फैज़ान अपनी जगह घिसिया कर रह गया। ओके, तुम जा सकते हो और कोशिश किया करो कि इतना ज़्यादा ध्यान काम पर दो, ना कि इधर-उधर की बातों पर। शर्जील की तंबी पर वो ये सर कहता फ़ौरन निकल गया था। जबकि शर्जील का रुख अब इस कंपनी के मालिक फराज साहब के ऑफ़िस की जानिब था, जो यकीनन एला से तफ़सील जानने के बाद इसे ज़रूर ऑफ़िस रूम में बुलवाने वाले थे। हेलो, हाले कहाँ हो तुम? सोया कान से मोबाइल लगाए शरारत से गोया हुई। ज़ाहिर-सी बात है आज यूँ ही से ऑफ पर है तो मैं सो रही हूँ। वो कंबल में घुसी एक हाथ निकाल कर कॉल रिसीव करने पर चिढ़ गई थी। अच्छा तो नींद को ज़रा टाटा बाय-बाय कहो और फ़ौरी हमारी तरफ पहुँचो। सोया ने नया हुक्म सादिर किया। क्या यार ऐसे ही बता दो, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। वो जमाई रोक कर कोहनियों के बल उठ बैठी। यार जल्दी से आ जाओ ना। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, ज़ोया चहक कर बोली। 1 मिनट, कहीं तुमने आंटी को हमारे प्लान्स के बारे में तो नहीं बता दिया? और मेरी शामत बुलवा ली हो? खाले को खदशा लाहक हुआ। नहीं भई ऐसा कुछ नहीं है, वो बिगड़ी। तो फिर मैं नहीं आ रही, तुम आ जाओ, सुस्ती और काहली से बोली। यार हद है मतलब, दिन का 1 बजने वाला है और तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। तो बस हाले मैंने कह दिया जल्दी से आ जाओ, फिर बाद में मुझे ना कहना कि मैंने दोस्त होने का हक नहीं अदा किया। वो एक अदा से बोली। ऐसा क्या सरप्राइज़ है? अब वो भी तजस्सुस का शिकार हुई थी। अब ये तुम गैस करो। जब तक मैं ज़रा गार्डन में अपने प्यारे फूलों को पानी दे आती हूँ, तेज़ी से बोलती वो झट कॉल रख चुकी थी। ऐसा भी क्या है, अब तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है दया। हाले में छुपी शक्की खातून ने झट अंगड़ाई दी थी। हेलो, वो इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। शर्जील, क्या हम आज शाम डिनर पर मिल सकते हैं? शर्जील को माला हमदानी की आवाज़ सुनकर कोफ्त हुई थी। नहीं, खुरदुरे से लहजे में बोलता वो खट से कॉल रख चुका था। दूसरी जानिब वो हक्का बक्का सी खामोश स्क्रीन को देख कर रह गई थी। पागल लड़की, फजूल में गले पड़ गई है। वो इस वक्त साइड विजिट के लिए निकला हुआ था और माला हमदानी की फजूल बात पर इसे शदीद झुंझलाहट हुई थी। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है भई? हाले अपना दुपट्टा संभालती तेवरी चढ़ा कर बोली। ये देखो ना यार, लास्ट टाइम जो मैंने मिनी प्लांट लगाया था इसमें से पैसे निकल आए हैं। ज़ोया ने जिस कदर चहक कर कहा था दूसरी जानिब का तासुर इससे कई ज़्यादा खुश्क था। फिर मैं क्या करूँ? वो सीने पर बाजू लपेट कर बोली। ज़ोया को इसे ज़िच करने में मज़ा आ रहा था। नाचो, गाओ, भंगड़ा डालो। हैदर इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। वो बड़ी उजरत में घर से निकला था और हाले को तंग करने में अब इसे खूब लुत्फ़ आ रहा था। तुमने इस फ़ज़ूल वजह से मेरी नींद खराब की थी। हाले को तब चढ़ी। हा हा हा, तो और क्या, मिनी प्लांट से पैसे उग जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। तुम्हें तो अब तक मेरी इस काविश का ढिंढोरा पूरे जहान में पीट देना चाहिए था।
मैं तुम्हें ना पीट दूँ, जो तुमने मेरे सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया है। अरे हाले! वो इसे झुंझलाता देख मुस्कुराहट जब्त करके आगे बढ़ी। वहीं बैठी रहो, बदतमीज ना हो तो। मैं जा रही हूँ। वो पैर पटकती इसकी कोई भी बात सुने बगैर ही दुरानी मेंशन से निकल आई थी, जो पीछे से पुकारती रह गई थी। हाले बेटा, कहाँ भागी जा रही हो? खालिद और फायजा बेगम ने अपनी बेटी को आंधी तूफान की तरह अंधाधुंध सीढ़ियां अबूर करता देख टोका। बाद में बात करती हूँ पापा। इस वक्त हाले का मूड सख्त खराब था। वो दोनों ही इसकी पुश्त देखते खामोश हो गए, जो शायद गुस्से में थी। अच्छा, आप इसे छोड़े। हैदर से मुलाकात हुई? फायजा बेगम ने दरियाफ्त किया। नहीं, कल ही तो वापस आया है बच्चा। और वैसे भी शाम में भाई साहब ने एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया है, तो बस एक, अब क्या बार बार परेशान करना। इनकी सुबह सिर्फ महमूद और रानी से ही मुलाकात हुई थी। चलें ठीक है, मैं जरा आपकी बेटी को देखूं। इसके तो माथे के बल भी सीधे नहीं हो रहे आजकल। वो जरा नाराजगी से बोलती इसके कमरे की जानिब पड़ी थी। शाम के मंजर को मजीद पुरकैफ बनाती आसमान पर फैली शफक ने माहौल में एक खुशगवारियत सी फूंक दी थी। अंसारी हाउस की फैमिली के अलावा चंद और दोस्त अहबाब थे, जो दुरानी मेंशन में इस धरती शाम का हिस्सा थे। यार जोया, मैं इतने सालों बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ, मगर आपकी दोस्त मोहतरमा ने तो मुझसे सलाम दुआ तक करना गवारा नहीं किया। मेहमानों से फ्री होता वो बिला आखिर खुद ही इन दोनों के पास आन पहुंचा था। हाँ, लोग तमीज भूल गए हैं। सोया ने मुस्कुरा कर छेड़ा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो जरा। हालत चिढ़कर बोली, जो अपने भाई के साथ मिलकर कल से इसे उल्लू बना रही थी। शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनने नसीब हुई, वरना मुझे लगा हाले अंसारी गूंगी हो चुकी हैं। हैदर ने शरारतन तंजिया कहा, जो इधर उधर नजरें फिरती जूस पीने में मसरूफ थी। हेलो मैडम, आपसे मुखातिब हूँ मैं, मगर मैं आपसे मुखातिब हरगिज भी नहीं हूँ। हाले फाड़ खाते लहजे में बोलती इसे भौंचका कर रह गई। हैं? हाले क्या हो गया यार? अब इसे सच में इसके रवैये पर हैरत हुई थी। नहीं, पहले तुम अपनी इस मीसी बहन के साथ मिलकर मुझे पागल बना लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। वो अब नाराजगी से बोली। मैं जोया, बताओ क्या शरारत की है तुमने? हैदर ने अब मुस्कुराहट जब्त कर दी जोया को घूरा, जिसके लबों पर पहला तबस्सुम सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही उल्लू बन गई है। जोया मुस्कुराकर बोलती इसकी पहुंच से फौरी दूर हुई थी। क्या मैं? इसका मुंह हैरत से खुला। जाओ, मैं बात नहीं करती तुमसे। वह नाराज होकर हैदर की बात भी अनसुनी करती मंजर से गायब हो गई थी, जबकि वो इसकी हरकतों पर ताज्जुब से नफी में सर हिला कर रह गया, जिसकी हरकतें आज भी वैसी ही बचकाना थी। हैदर, मैं तुमसे नाराज हूँ। हाले ने इसकी जानिब से रुख मोड़कर नाराजगी का इजहार किया, जो बहुत देर बाद इसे मनाने में कामयाब हुआ था। मगर वो फिर नाराज दिखाई दे रही थी। वो क्यों भला? हैदर ने इत्मीनान से पूछा। तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा था इस बार तुम्हें एयरपोर्ट लेने मैं जाऊंगी, पर तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। खाले अंसारी के मुंह बसोर कर कहने पर वो दिलकशी से मुस्कुराया। वो दोनों इस वक्त दुरानी मेंशन में जोया के कमरे में मौजूद थे, और वो मैडम नाराजगी जता रही थी, जो ना सिर्फ बगैर बताए आ गया था, बल्कि पूरे एक दिन बाद इससे मुलाकात कर रहा था। खबरदार से तुमने मेरी नाराजगी को किसी खातिर में लाए बगैर इस सिंपल की नुमाइश की तो। हाले ने इसके गालों में पड़ते घड़ों को देख घूरा। अच्छा, नहीं करता। तुम नाराज नहीं हो यार, मैं तो बस तुम सबको खुश करना चाहता था। मगर मुझे लग रहा है कोई मेरे सरप्राइज पर खुश नहीं हुआ। हैदर ने अपनी मुस्कुराहट रोक कर एक नज़र इसके खफा खफा से चेहरे पर डाली थी। तुम सबको सरप्राइज कर देते, लेकिन मुझे तो इन्फॉर्म कर सकते थे। मैं तुम्हारी बेस्ट बडी हूँ, और तुम मुझसे पूरे 24 घंटों बाद मिल रहे हो। हाल की नाराजगी अभी भी अपनी जगह दुरुस्त थी। मैं तुम्हें भी तो सरप्राइज करना चाहता था ना। इसका अंदाज सुलझ जो था। वो रुख मोड़े बैठी थी। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। आइंदा मैं कहीं भी आने जाने से पहले तुम्हें, यानी अपनी बेस्ट फ्रेंड को जरूर बताया करूंगा। हैदर ने अपना हाथ उठाकर ऐलान करने के अंदाज में सरेंडर करते हुए कहा। पक्का? वो तस्दीक चाहिए। बिल्कुल पक्का। हैदर ने मोहर लगाई, तो वो खिलखिलाकर सीधी होकर बैठी। अब इसका रुख खाले की जानिब था। क्या हो रहा है भाई? जोया ने ट्रे में रखे 3 कॉफी के मग साथ रखते फ्लोर कुशन से टेक लगाकर पूछा, जबकि हाले और हैदर भी जरा फासले पर फ्लोर पर ही बैठे थे। कुछ खास नहीं। हाले मैडम को इनके गिफ्ट्स दे रहा हूँ, जिसकी लंबी चौड़ी लिस्ट इन्होंने मुझे थमाई थी। हैदर ने ब्राउन आंखों में शरारत लिए कहा। हाँ हाँ, ये भी सही है, जबरदस्ती के गिफ्ट्स। इसने मजे से कहका लगाया, तो हाले ने एक धमोका इसकी कमर पर चढ़ा। उफ अल्लाह, मार डाला जालिम। इसने मसनूई दुहाई दी, जबकि हैदर इन दोनों को चीजों के साथ मसरूफ होता देख
मुस्कुरा कर आहिस्ता से कमरे से निकल गया। इस वक्त अंसारी हाउस के तमाम ही मकीन सुबह नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। हाल यूनिवर्सिटी से देरी के बाईस जल्दी जल्दी नाश्ता करने में मसरूफ थी। जब साथ आकर बैठी फायजा बेगम ने इसको टोकना जरूरी समझा। आराम से खाओ फरियाल, किस बात की जल्दी है तुम्हें? फायजा बेगम ने खालिद साहब के आगे फ्रेश जूस का गिलास रखकर टोका। मामा, मेरा आज का एक बहुत अहम लेक्चर है, अगर वो मिस हो गया तो बुरा होगा। खालिद ने बॉयल एग फोर्क पर फंसाते जल्दी से हाथ साफ करके कहा। पूरे सेमेस्टर में तो तुम्हें पढ़ने का ख्याल नहीं होता, और अब एग्जाम्स के दिनों में तुम्हें पढ़ाई याद आ रही है। हालिद खिसिया कर मुस्कुराई। ओके, अल्लाह हाफिज, इस बार टॉप तो मैं ही करूंगी। वो जल्दी से बोलती तेजी से निकल गई थी। फायजा बेगम ताज्जुब से नफी में सर हिलाती रह गई थी। उफ उफ उफ, अल्लाह पूछे तुम्हें यूनिवर्सिटी वालों, इतने खुशगवार मौसम में इतने खुश लेक्चर देकर सारे मूड का बेड़ा गर्क कर डाला। जोया ने सेवेंटीज की हीरोइंस के अंदाज में दुहाई दी। नहीं तो क्या यूनिवर्सिटी वाले इस मौसम की मुनासबत से तुम्हें लैला मजनू की कहानियां सुनाते? हारे ने इसकी अदाकारी पर हाके घुमाए। तुम तो रहने ही दो, पहले इतने मजेदार मौसम में कंबल में घुसी सो रही थी, और फिर यहाँ यूनिवर्सिटी आकर सारा वक्त इन बोरिंग लेक्चर्स में गवा दिया। सोया ने अपनी छोटी सी नाक बसोड़कर शिकवा दर्ज करवाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इसे मुंह ना बसोरा करो, खासकर ये नाक मत घुमाया करो, ऐसा लगता है जैसे नाक ही कहीं गायब हो गई है, बगैर नाक से नटखटी लगती हो। हाले ने इसकी इस अदा पर हल्का सा कहका लगाया, जिस पर इसका मुंह मजीद फूलकर कुप्पा हो गया। दरमियाना कद काट जोया की उजली सी सुर्ख सफेद तंगत पर छोटे छोटे नाजुक से नैन नक्श जो इसकी शख्सियत का खासा थे। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, नर्म गुजार गुलाबी लब और खास कर छोटी सी नाक जिस पर हाले से अक्सर ही नट नकटी कहकर चिढ़ाया करती थी। कंधे तक आते स्ट्रेट बालों की हाई पोनी टेल बना रखी थी, जबकि कंधे पर एक तरफ को बड़ा दुपट्टा पूरे में झाड़ू देता जा रहा था, जिसको बारात दुरुस्त कर चुकी थी। अच्छा छोड़ो, मुंह न बनाओ, आज मैं और तुम फुल मस्ती करेंगे। चलो सबसे पहले लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आला ने इसके बिगड़े तेवर देख फौरन ही प्रोग्राम तरतीब दे डाला। सच? इसने खुशी से तस्दीक चाही। मुझ अब दोनों तेज तेज कदमों से यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया की जानिब जाती सदर दरवाजा घूर कर गई थी। सफेद करोला को तेज रफ्तार से कराची की मसरूफ तरीन शाहराह पर भगाती तेज आवाज में बजते म्यूजिक की लिरिक्स पर गुनगुनाती वो दोनों ही मदहोश सी थी। जब अचानक ही तेज रफ्तार गाड़ी इनकी गाड़ी से जरा से फासले से गुजरी, जिस पर फरियाद चौंक कर होश में आई। साइड मिरर से पीछे देखा, जहाँ तकरीबन सभी गाड़ियां इनकी तरह स्पीड से दौड़ती चली जा रही थी। फरियाल ने भी मोड़ काटा ही था कि यकदम ही दूसरी गाड़ी ने इन्हें साइड दबाकर इनसे आगे निकल गई थी। हाले ने फौरन गाड़ी संभाल ली थी, वरना इस स्पीड के साथ इनका तसादुम जरूर दूसरी गाड़ियों से हो जाता। ये कौन पागल था? अपने बाप का रोड समझकर गाड़ी चला रहा है क्या? जोया गुस्से से सुर्ख होती तैश में बड़बड़ाई। अभी दिमाग ठीक करती हूँ। हाले भभू का चेहरा लिए गुस्से से बोली। हाला, गाड़ी आहिस्ता चलाओ यार, मुझे अभी नहीं मरना। जोया ने स्पीड का कांटा 100 से ऊपर जाता देख इसे टोकना लाजमी समझा, जो बदला लेने के चक्कर में खुद को इंग्लिश एक्शन फिल्मों की हीरोइन समझ रही थी। रास्ते में आने वाली हर गाड़ी को साइड देती वो इतनी स्पीड में थी कि अगर जरा सा भी बैलेंस आउट होता तो वो दोनों ही किसी बहुत बड़े खतरनाक हादसे का शिकार हो सकती थी। बिलाखिर हाले अंसारी ने एक्शन फिल्मों की हीरोइंस की तरह तेज रफ्तारी से जरा फासले पर सामने से गाड़ी लगाई थी, और वो तो सदा शुक्र था कि इस रोड पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, वरना अब तक ना जाने कितनी ही गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर रोड पर एक भयानक मंजर पेश कर चुकी होती। शर्जील ने अचानक अपने सामने आती गाड़ी को देख कर वक्त ब्रेक लगाया था, जिस पर इसका वजूद एक झटके से आगे को होता सीट से जा लगा। Who's this? शर्जील गुस्से से लाल पीला होता एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलता बाहर निकला। सामने से हाले भी सिमट आ रही थी। ये क्या बदतमीजी है? शर्जील को देख हाले की फर्राटे भरती जबान को ब्रेक लगा। तुम? ओह, तो ये आप मोहतरमा हैं। मिस जुड़वा, इस रोज़ मैंने आपको एक मुफीद मशवरे से नवाजा था कि इन मोहतरमा की भर्ती किसी पागल खाने में करवा दें, मगर शायद आपका भी इन साहिबा की तरह दुनिया वालों पर रहम करने का कोई इरादा नहीं है। शर्जील ने तंजिया कहा। क्या? देखो मिस्टर, इस रोज़ तो मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मैं आज तुम्हें नहीं बख्शूंगी। वो इनकते शहादत उठाकर करख्तवी लहजे में चीखी। अच्छा क्या करेंगी आप? वो हौले से इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी। फिलहाल कोई माकूल बात न समझ आने पर जो मुंह में आया बोल गई। क्या? हा हा हा, मतलब सच में? शर्जील का कहका बस साख्ता था। ये चिढ़ाक भर की लड़की हर बार कोई नया शोशा छोड़ देती थी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है?
वो ज़रा शर्मिंदगी का शिकार हुए। मिस सेक्रेटरी, आप ज़रा इनके किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी सेशन तो अरेंज करवाएँ। शर्जील खामोश खड़ी ज़ोया से मुखातिब हुआ। ज़ोया दो मुलाकातों में अपने दो नए नाम सुनकर मुठ्ठियां भींच कर रह गई। ओह हेलो, मसला क्या है? साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत मुझे नहीं, आपको है। समझ आई बात? वो सख्ती से बोली। नज़र आ रहा है, वही दिल जलाता अंदाज। अगर आप दोनों अपनी पानीपत की लड़ाई में इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि हम रोड पर मौजूद हैं, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अब के लोग आप दोनों को पागलखाने पहुँचाने का इरादा रखते हैं। इससे पहले कि ये अपने अज़ाइम पर पूरा उतरे, मेरे ख़्याल से आप दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। इस बार वो भी मैदान में कूदी थी। किसकी इतनी जुर्रत? अचानक रुख मोड़कर पीछे देखा तो गाड़ियों का रश देख घिघी-सी बन गई थी। इससे पहले कि यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार आकर आपके साथ-साथ कुछ मुज़ाहिब शहरी की भी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करे, मैं निकलता हूँ। शर्जील भी अपने बचकाने रवैये पर खुद को कोसता हुआ जल्दी से वहाँ से निकला था, क्योंकि अब वहाँ वाक़ई रश लगने लगा था। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, रोड पर गाड़ी चलाने तक तो आती नहीं है। रोड पर रश बढ़ता देख वो बड़बड़ाती हुई गाड़ी में सवार हुई, जिसकी मंजिल अब अंसारी हाउस था। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। सायमा बेगम ठहर गई थी। मामा, आप कहीं जा रही हैं? वो इन्हें तैयार देख यूं ही पूछ बैठा। जी बेटा, आपके बाबा के साथ आज डिनर पर इनवाइटेड हूँ। बस वहीं जा रही हूँ। वो उजलत में दिखाई दे रही थी। कोई काम था? वो इसे कशमकश से दो चार देख पूछ बैठी। जी काम तो था, मगर इतना जरूरी नहीं है। वो बात खोल कर गया। पक्की बात है? वो तस्दीकी लहजे में गोया हुई थी। जी बिल्कुल, वो मुस्कुराया। चलो फिर ठीक है, सुबह बात होती है। मैं चलती हूँ, तुम्हारे बाबा गाड़ी में मेरा वेट कर रहे होंगे। वो तेजी से निकल गई थी। उफ! हैदर ज़रा मायूस हुआ था। फिर नज़रें किसी की तलाश में चारों जानिब घुमाईं, मगर निगाहें खाली और मायूस ही लौट आई थीं। अहमद विला में अभी रात के खाने का दौर खत्म हुआ था। घर के बड़े से लाउंज में वे तीनों अफराद सोफों पर बरजमान चाय की चुस्कियों के साथ हल्की-फुल्की गप लगाने में मसरूफ थे। तो फिर बेटा, अब आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? सानिया अहमद ने अपने खूबरू वजीह शख्सियत के मालिक बेटे को देख इस्तफसार किया। नॉट अगेन मॉम, किस बात की जल्दी है? कर लूंगा शादी भी, जब मुझे कोई अपने मियार की लड़की मिल जाएगी। शर्जील ने बेजारी से उताए लहजे में कहा। यंग मैन, इतने बेजार क्यों हो रहे हो? 30 के हो गए हैं, अब आप बिजनेस की दुनिया में भी शर्जील अहमद का एक नाम बन गया है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। फराज साहब ने रसानियत से कहा था। डोंट वरी डैड, जिस दिन मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, इसके अगले दिन ही मैं रिश्ता भिजवा दूंगा। ट्राउजर शर्ट में मलबूस वो आरामदेह अंदाज में बैठा था। बड़ी बड़ी गहरी सी आंखों में किसी का सरापा झम से लहराया था। जो नाभि लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। दिलकशी से माथे पर बिखरे बालों में हाथ फेर कर वो दो पल को आंखें मूंद गया। दिमाग में एक ख्याल सा घूम गया था, जिस पर वो जल्द ही अमल पैरा होने का इरादा रखता था। फराज साहब की नज़रें खुद पर ही मरकूज एक झेप कर मुस्कुराया, जो सानिया बेगम की जांचती नजरों का सवाल देख मुस्कुरा उठे थे। सानिया, मुझे लग रहा है शर्जील ने हमारी बहू ढूंढ लिया है, अब बस तुम रिश्ता ले जाने की तैयारी करो। फराज साहब के अंदाज पर वो बिला इरादा ही कहका लगा उठा। क्या सच में? सानिया की ही तो दिली ख्वाहिश पर आई थी। यस मॉम, डैड बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शर्जील ने अब इनके मफरूज़े की तस्दीक कर डाली थी। या मेरे अल्लाह, जल्दी बताओ, कौन है वो लड़की? क्या करती है? किस खानदान से है? हमारे स्टेटस के तो लोग हैं ना? सानिया ने खुशी और जज्बात से सवालों की बौछार कर डाली थी। मॉम मॉम रिलैक्स, मैं जल्द आपको इससे मिलवाऊंगा। फराज और वो दोनों ही इनकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा उठे। वो तो पिछले 5 साल से इसके लिए लड़की तलाश कर रही थी, मगर इसे कोई पसंद आती तब ना। कितने ही बड़े बड़े खानदान के लोग शर्जील अहमद को अपनी बेटी देना चाहते थे, अपनी दोस्तियां रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, मगर इसे अपने सर्कल की कोई एक लड़की तक पसंद नहीं आई थी। और अब इसके इस कदर अचानक फैसले पर सानिया खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। हाला, खैरियत? हैदर, तुम यहाँ? हाले को हैरत हुई थी। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? वो जेबों में हाथ फंसाए मुस्कुरा कर गोया हुआ। बिल्कुल आ सकते हो, मगर इतने दिन हो गए तुम्हें पाकिस्तान आए हुए, तुमने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया है। हाँ, तो अब तुमने भी तो मुझे टाइम देना छोड़ दिया है। न जाने कहाँ मसरूफ रहती हो। वो शिकवा कना लहजे में बोला। हैदर, दरअसल मेरे पेपर्स होने वाले हैं, तो मैं इसी की तैयारी में मसरूफ हूँ। ओह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। वैसे ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है ना? हाँ जी, इसके बाद मैं आज़ाद हूँ। वो चहकी।
आज़ाद क्यों भई? कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है? वो दोनों बातें करते हुए लॉन में आ गए थे। नहीं, ज़ोया से पूछूँगी। उफ़! एक तो तुम दोनों की जोड़ी तो करण अर्जुन की जोड़ी से भी ज़्यादा मज़बूत है। हैदर तंज़िया बोला। हा हा हा। वैसे तुम बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम बाहर कहीं शादी वगैरह तो नहीं करके आए हो ना? वो मशकूक हुई। मेरी ये मजाल, वो मुस्कुराया। हाँ, पता चले बेचारी ज़ोया पर कोई गोरी भाभी मुसल्लत कर दो तो। वो शरारती लहजे में बोली तो हैदर ने महज मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। मेरा इरादा बाबा का बिज़नेस ज्वाइन करने का है और इसके बाद शादी। वो आहिस्ता-आहिस्ता मौज़ू पर आ रहा था। सच में? वो इश्तियाक भरे लहजे में बोली। शक की कोई गुंजाइश? वो आईब्रो उठाकर बोला। हरगिज़ नहीं, मगर तुम्हारे लिए लड़की मैं ही पसंद करूँगी। और अगर मैं कहूँ कि लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ, तो वो चंद लम्हों के लिए ठहरा। क्या छुपे रुस्तम, तुमने मुझे बताया भी नहीं? वो मुँह खोले हवन्नक बनी। चलो अब बता तो रहा हूँ। अच्छा बताओ कौन है? तुम। वो एकदम खामोश हो गई। हैदर की जांचती निगाहें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मेरा मतलब है तुमसे बहुत अच्छे से जानती हो। हाले के चेहरे की हवाइयाँ उड़ती देख वो फौरन संभला। क्या वाकई? वो अपने तासुरात पर काबू करती जरा हैरत ज़दा सी बोली। तो फिर बताओ कौन है वो? इसका तजस्सुस बेदार हुआ। बस है कोई, जल्द बताऊँगा। अभी तो मुझे एक काम याद आ गया है, मैं निकलता हूँ। वो इसे यूं ही तजस्सुस का शिकार छोड़कर अंसारी हाउस से निकल आया था। अहमद विला के बैक साइड पर पहले वसीम और अरीज हाउस हॉर्स राइडिंग अरीना में बाउंड्री के अंदर ब्राउन काले बालों वाले घोड़े पर बैठा शर्जील इस वक्त घुड़सवारी में मसरूफ था जो इसकी पसंदीदा थी। अपने फार्म पर दुनिया भर से आला नस्ल के खूबसूरत तरीन घोड़े मंगवा कर रखे हुए थे जिन्हें वो हर साल मुनक्किद होने वाली रेस में दौड़ाता था। आज एक तवील अरसे बाद वो अपने मखसूस पसंदीदा घोड़े की सवारी का लुत्फ उठा रहा था। घोड़ा भी शायद इतने दिन बाद अपने मालिक के सवार होने पर बेइंतहा खुश था और अपनी खुशी का इजहार वो ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर कर रहा था। पूरे ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगाता तेज रफ्तारी से दौड़ता चला जा रहा था, जबकि शर्जील इस बार मुतवक्का रेस में इसे ही दौड़ाने का इरादा रखता था। बाउंड्री के पार नशीली आंखों पर गिरे सनशेड चढ़ाए खड़ी माला आंखों में नागवारी समाई शिद्दत से इसका इंतजार कर रही थी। वो शायद नहीं, यकीनन जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहा था। शर्जील की एक सीटी पर घोड़ा इसके हुक्म का ताबे फौरन रफ्तार आहिस्ता करता अब उछल उछल कर चलता ग्राउंड का आखिरी चक्कर ले रहा था। माला के कदमों से जरा फासले पर ठहर कर अपने आगे के दोनों पांव फिजा में बुलंद करता हिनहिनाता जैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। शर्जील अपने वफादार घोड़े की इस कदर उनसीयत पर मुस्कुराकर इसके बालों और गर्दन पर हाथ फेरता बाउंड्री क्रॉस करता इसके नजदीक आया, जबकि घोड़ा एक बार फिर अपने आगे की दोनों टांगे हवा में बुलंद करता ऊंची आवाज में हिनहिनाता खुशी का इजहार करता बाकी घोड़ों के साथ आगे बढ़ गया। एक मुलाजिम ने दौड़कर पानी की बोतल इसकी जानिब बढ़ाई थी जिसे थामता वो इस हसीना को मुकम्मल नजरअंदाज करता टॉवल से गर्दन साफ करता एक तरफ को बेंच पर बैठ गया। इसकी इस कदर बेनियाजी पर माला की आंखों में मिर्चें सी मचने लगी थी। इसे कब किसी ने यूं नजरअंदाज किया था? हाय शर्जील, दुबई से वापस आने के बाद तो कुछ ज्यादा ही मसरूफ नहीं हो गए हो? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। वो बड़ी बेतकल्लुफी से बोली। इसके इस कदर फ्रैंक होने पर शर्जील की गहरी सियाह आंखों में नागवारी सी छाई थी। जरा सी नजर उठाकर इसकी सिमत देखा जो हल्के आसमानी रंग की नैरो पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने ब्लैक लॉन्ग शूज में पुश्त पर खुले छोड़े बालों के बाईस चलती फिरती कयामत लग रही थी। मेकअप से लबरेज चेहरे को धूप से बचाने के लिए सर पर हैट पहन रखा था, जबकि चेहरा धूप की तमाज़त से तप उठा था। मैं दुबई बिजनेस मीटिंग में गया था, सालाना शॉपिंग करने नहीं। शर्जीन ने रखाई से गहरा तंज किया था। जानती हूँ, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगे हो। माला ने मुस्कुरा कर अपनी जेब मिठाई। शर्जील, अगर तुम माइंड न करो तो हम दोनों आज साथ में लंच करें। माला ने मौके की मुनासबत से ऑफर की। मेरे पास इन फालतू चौंचलों के लिए वक्त नहीं है। शर्जीन ने उखड़े अंदाज में इसे जवाब देकर कदम घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ाए, जबकि वो एक बार फिर खुद को नजरअंदाज किए जाने पर गुस्से से सुलगती रह गई थी। नफ्सियाती इंसान समझता क्या है खुद को? इडियट। माला इर्द गिर्द में खड़े मुलाजमों की फौज के बीच खुद की इस तस्दीर पर बड़े बड़े कदम लेती शरीर कोफ्त का शिकार हुई थी। जारी है। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आप लोगों को
ये नॉवल कैसा लग रहा है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू पार्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।